नमस्कार। आज नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर जेडी गुप्ता आपके साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग के समय लीज और परचेज असेट्स, इस बात पर डिसीजन टैक्स पर्पस से यदि हमें लेना है तो हम किस तरह से लें, और इसमें हमने एक और बात देखी जहां हमें पीवी रेशियो दिया है। तो पीवी रेशियो के साथ हमारा डिसीजन मेकिंग किस तरह से होनी चाहिए, आइए देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। On the basis of information given below, determine whether the assessee should purchase an asset or taken on lease. Cost of asset rupees 1 lakh, rate of depreciation at the rate of 15%, rate of interest 10%, payment of loan by assessee rupees 20,000 per annum, rate of tax 26%, residual value rupees 20,000 after 5 years, profit of the assessee rupees 1 lakh before depreciation, interest and tax, before lease, rent and tax, both condition. Lease rent rupees 30,000 per annum. If the present value factor at 10% is following. PV factor is first year 0.909, second year 0.826, third year 0.751, in fourth year 0.683 and fifth year 0.621। आइए देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। Asset taken on lease, first condition. So if asset taken on lease, so lease rent per annum is 30,000. So in first year, second year, third year, fourth year and fifth year, common means 30,000 per year. So here we write down 30,000 first year, 30,000 second, third, fourth and fifth year 30,000. Now tax paid on now tax saved in this case, if we don't purchase, so 30,000 is our allowed expenses. So in this case each year our tax saved 7,800, 7,800, 7,800 and fifth year also. So each year 7,800 tax saved. So cash outflow, our cash outflow is 30,000 minus 7,800, so 22,200 each year. Now we calculate the discount factor 10% PV factor value. So PV factor value is given first year 0.909, second year 0.826, third year 0.751, fourth year 0.683 and fifth year 0.621। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 22,200 से, तो हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आएगी 20,180, 18,337, फिर 22,000 को मल्टीप्लाई किए 0.751 से तो 16,672। फोर्थ ईयर इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करेंगे तो हमारे पास आता 15,163। फिफ्थ ईयर में 22,200 को मल्टीप्लाई किया 0.621 से तो 13,786। टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू of cash outflow in rupees, total of all year
first, second, third, fourth and fifth means 20,118, 18,337, 16,672, 15,163 and 13,786. इनका हमने टोटल लिया. So total value is 84,138. तो हमारा कैश आउटफ्लो क्या हुआ? 84,138 in first case when we take asset in lease. Now second condition, asset purchase. तो सेकंड ऑप्शन को अगर हम चूज करते हैं तब हमारे कैश आउटफ्लो की क्या स्थिति होगी? लोन रीपेमेंट. सो 20,000 पर एनम हमारे लिए लोन को रीपेमेंट करना है. सो 20,000 20,000 20,000 पर एनम पर ईयर. इंटरेस्ट पेड 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सो फर्स्ट ईयर 1 लाख 10% 10,000 and second year after paying first installment rest amount is 80,000. So 80,000's 10% is equal to 8,000 and next year rest amount balance amount is 60,000's 10% 66,000 and in fourth year our balance amount to pay 40,000. So 40,000's interest 10% 4,000 and fifth year rest amount is only 20,000 and 20,000 10% is 2,000. So it is allowable expense and it is paid. So total loan repayment and 10,000 interest, 8,000, 6,000, 4,000 and 2,000 is equal to 30,000 first year cash outflow, second year 28,000 cash outflow and third year 26,000, fourth year 24 and fifth year 22,000. तो ये हमारा कैश आउटफ्लो होगा जो हमारे लिए पेमेंट में देना होगा. अब हम देखते हैं कि हमारे लिए इस पर क्या मिलेगा. डिप्रिसिएशन अलाउड होगा. अगर हम परचेज करते हैं तो अलाउड एक्सपेंडिचर 15,000 15% 1 लाख. नेक्स्ट ईयर रेसिडुअल वैल्यू ऑन रेसिडुअल वैल्यू 15% 12,750 एंड फोर्थ ईयर 10,838 होगा. फोर्थ ईयर 9,212 एंड फिफ्थ ईयर 7,830. तो ये हमने जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन रिटन डाउन मेथड से कैलकुलेट करना है. तो हमने रिटन डाउन मेथड से पर ईयर कैलकुलेट किया. तो डेप्रिसिएशन में अमाउंट जब हमारी जाती है इसके बाद जो हमारा टोटल आएगा इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर में गया और डेप्रिसिएशन. सो टोटल 10 + 15 is equal to 25,000. Here interest paid and depreciation 12,750 मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास 25,000 और इधर 6,000 और 10,000 इनको मिला 16,838. 4,000 and 9,212 is equal to 13,212 and fifth year 2,000 interest plus depreciation is equal to 9,830. ये हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है. अगर ये एक्सपेंडिचर हम करते हैं तो इस पर हमारा जो टैक्स सेविंग है वो टैक्स सेविंग का अमाउंट निकालेंगे हम. तो 26% ऑफ 25,000 6,500 in second year
20,750. 26% tax is 5,395. In third year 16,838. 26% 4,378. And fourth year 13,212. 26% 3,435. In fifth year 9,830. 26% 2,556. Now net cash outflow after deducting tax saving on this amount. So rest amount is column means point third minus 6 means cash outflow is 30,000 and our tax saving 6,500. So difference of 3 minus 6 is equal to 23,500 in first year कैश आउटफ्लो आएगा. 28,000 माइनस 5,395. सो रेस्ट अमाउंट कैश आउटफ्लो इज 22,605. in third year 26,000 minus 4,378. so rest amount is cash outflow from the company 21,622. and cash outflow is 24,000 minus tax saved 3,435. so rest amount is 20,565. and fifth year our cash outflow, total cash outflow is 22,000 and tax saved minus 2,556. so amounts are 23,500, 22,605, 21,622, 20,565 and 19,444. अब हमारे पास पीवी वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है, तो पीवी फैक्टर वैल्यू 10% है, तो इनका 10% पीवी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेट कैश आउटफ्लो हमारे लिए मिल जाएगा. तो हमारा नेट कैश आउटफ्लो क्या होगा? 21,362 यानी 23,500 मल्टीप्लाई बाय 0.909 से, तो हमारे पास नेट पीवी वैल्यू पर कैश आउटफ्लो होगी 21,362. सेकेंड ईयर में 22,605 मल्टीप्लाई बाय 0.826 is equal to 18,672. Third year 21,622 multiply by 0.751. so net cash outflow 16,238. and fourth year 20,565 multiply by 0.683. तो हमारी कैश आउटफ्लो होगी 14,046 नेट कैश आउटफ्लो हुआ. इसके बाद हमारे पास फिफ्थ ईयर में 19,444 मल्टीप्लाई बाय 0.621. सो नेट कैश आउटफ्लो इज 12,075 रुपीज़. अब इनका टोटल लेंगे 21,362, 18,672, 16,238, 14,046, 12,075. so total will be 82,393. it is total net PV of cash outflow. तो
पीवी पर जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो कितना आएगा 82,393। आइए इस पोजीशन को देखते हैं। टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज 82,393 in if we take it asset in lease, and when we purchase PV of cash inflow asset sold ₹20,000। अगर 20,000 में हम कैश इसको सोल्ड करते हैं तो हमारी लास्ट ईयर की जो पीवी वैल्यू क्या है 0.621। सो ओरिजिनल नेट कैश फ्लो कितनी होगी 12,420 होगी, क्योंकि हमारे पास जब असेट के 5 साल का डिप्रिसिएशन ले लेंगे तो लास्ट ईयर में जब हम बेचते हैं तो 20,000, तो उसका पीवी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास नेट कैश फ्लो 12,420, और नेट कैश आउटफ्लो हमारे पास क्या हो जाएगी 82,393 माइनस 12,420 इज इक्वल टू 69,973। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो अब हम कंक्लूजन में हम क्या देखते हैं, अगर हम असेट को लीज पर लेते हैं तो वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ असेट, सॉरी शायद मैंने इसको 82,000 को बोला था, 84,000 था वो, 84,138। ये हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन था जो हमने लीज पर लिया। तो लीज पर लेने पर हमारे पास कैश आउटफ्लो कितनी होती 84,138, एंड परचेज करने पर हमारी कैश आउटफ्लो केवल कितनी होगी 69,973। तो यहाँ हमारी जो कैश आउटफ्लो जहाँ कम होगा, कैश आउटफ्लो कम होगा वहाँ हमें डिसीजन लेना चाहिए, और इसलिए हमारा डिसीजन होगा कि हेंस असेट शुड बी परचेज। अगर हम असेट को परचेज करते हैं तो हमारी केवल आउटफ्लो कितनी आ रही 69,973। अदरवाइज अगर हम लीज पर लेते हैं तो हमारी कैश आउटफ्लो हमारे संस्थान से कितना होगा 84,138। तो लेस वैल्यू हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, तो हमारा जो डिसीजन होगा हमें असेट को परचेज कर लेना चाहिए। नमस्कार, नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।